Class 10, Page 5, Social Studies, History, the French Revolution and the Idea of the Nation, फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्र कैसा हो, कैसे उसका निर्माण हो, कैसे उसका शासन हो, कैसा उसका समाज हो, और इन सब के लिए फ्रांस में जो क्रांति हुई, कब हुई, कैसे हुई, इसके विषय में विचार करेंगे। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। 1789 में पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति राष्ट्रीयता के बारे में फ्रेंच क्रांति से हुई। 1789 में 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई और उस क्रांति से ही राष्ट्रीयता के भाव का पहला स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। There was a revolution in France in 1789, and after that revolution a clear idea came about nationalism. France, as you would remember, was full-fledged territorial state. In 1789, under the rule of an absolute monarch, France as you know, as you remember, was full-fledged territorial state. France एक पूर्णतया राजशाही शासन के अंतर्गत 1789 में पूर्ण राज्य था। एक निरंकुश शासन प्रणाली के अंतर्गत 1789 में फ्रांस एक पूर्ण राज्य के रूप में था। France was a full-fledged territory in 1789 and it was ruled by a monarch who was absolutely free, who was a dictator. The political and constitutional change that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to body of French citizens. The political and the constitutional change that came in the wake of the French Revolution, फ्रांस की क्रांति के जागरण के परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन फ्रांस में आया, उसने इस संप्रभुता को, इस राजशाही को फ्रांसीसी या फ्रांस के नागरिकों में परिवर्तित कर दिया। उस प्रभुसत्ता को जो राजाओं के हाथ में थी, वह अब वहाँ के नागरिकों के हाथ में चली गई और उसका ये फ्रांसीसी
या फ्रांस की क्रांति जो वहाँ के राजनीतिक और संवैधानिक जागरण के कारण हुई थी, हुआ। There was a constitutional change. There was a political change in France, and that change came after the French Revolution, in which the power of the king, the power of the monarch was transferred to the hands of the citizens living in France. फ्रांसीसी क्रांति जो हुई, जिसमें राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन फ्रांस में आए और उसके परिणाम स्वरूप जो निरंकुश शासन था वह वहाँ के नागरिकों के हाथों में सौंप दिया गया, और ये परिणाम था उस क्रांति का। द रिवॉल्यूशन proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. इस क्रांति ने यह घोषणा कर दी कि यह वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, जो अब से आगे राष्ट्र के स्वरूप और इसके भाग्य का निर्धारण करेंगे। अब वहाँ की जनता फ्रांस के भाग्य और राष्ट्र के निर्माण का निर्धारण करेगी, न कि वहाँ का राजा करेगा या वहाँ का विशिष्ट वर्ग करेगा। ये घोषणा की गई इस क्रांति में। द रिवॉल्यूशन डिक्लेयर्ड दैट नाउ the people living in the country will decide the shape and fate of the nation. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity and amongst the French people. From the very beginning, बहुत प्रारंभ से ही फ्रांस के क्रांतिकारियों ने अनेक ऐसे कदम उठाए और ऐसे कार्य किए जो वहाँ की जनता में सहयोग और सामूहिक पहचान के कार्यों के प्रति प्रेरित किया। सामूहिक पहचान हो लोगों की और सब मिलजुल कर काम करें, ऐसे अनेक कदम फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा आरंभ से ही उठाए गए थे।
The French revolutionaries, the people who took part in the revolution of the French, from very beginning, their actions were with the partition of the common people living in the nation. The common people living in the nation shared in the revolutionary actions, and they were given identity with the nation. राष्ट्र के साथ उन्हें पहचान दी गई और उनके सहयोग से ही आंदोलन के कदम उठाए गए। ऐसी व्यवस्था फ्रेंच क्रांतिकारियों ने प्रारंभ से ही की थी, जिससे जनसामान्य को महत्व मिला, उनकी रुचि बढ़ी, उनका सहयोग मिला। And that's why they were successful. With the help of the common people living in the country, they took part in the revolution because they were given importance by the revolutionaries from the very beginning. The idea of lay party, the fatherhood and lay citoyen, the citizen, emphasized the notion of united community, enjoying equal right under a constitution. दो विचारधाराएं थीं, एक तो पितृभूमि और दूसरी नागरिक। इन पर बल दिया गया, इन दोनों विचारधाराओं पर बल दिया गया और इससे संयुक्त समुदाय के भाव, जिसमें संविधान में सबको समान अधिकार की बात थी, समान अधिकार की बात थी। दो विचार थे, एक तो आइडिया ऑफ फादरलैंड एंड द सेकेंड वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ citizens living in the nation. These two ideas were emphasized, and these ideas encouraged the united community. This idea encouraged the people living in the country that they will have equal right in the constitution. They will enjoy equal right in the constitution, and this was emphasized through the lay patrie, meaning fatherland, and the lay citizen, means the importance of citizenship, नागरिकता और पितृसत्ता। इन दोनों पर बल दिया गया, जिससे संयुक्त समुदाय, संयुक्त सहयोग, साझा सहयोग की भावनाओं को प्रोत्साहन मिला और उससे सबको संविधान में समान अधिकार
की सहमति मिली या समान अधिकार के उपभोग या समान अधिकार प्राप्त करने की गारंटी मिली। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard। जो पहले का राष्ट्रध्वज था उसके स्थान पर फ्रांस का एक झंडा जो 3 रंगों से बना था उसका चुनाव किया गया और उसके स्थान पर उसे लगाया गया। रॉयल स्टैंडर्ड जो राष्ट्रध्वज था, जो राजशाही ध्वज था, उसे हटा दिया गया और उसके स्थान पर एक तिरंगे का चयन किया गया जो फ्रांस का नया झंडा था। There a new flag was selected in France. It was of 3 colors and the royal flag was replaced by it. The States General was elected by the body of active citizens। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों से किया गया एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, और उसका राष्ट्रीय संसद के रूप में नया नाम दिया गया। द स्टेट जनरल्स that was elected by the common people living in the country, and it has been given a new name, a National Assembly। New hymns were composed, नई प्रार्थनाएं बनाई गई, oaths taken, शपथ लिए गए, and martyrs commemorated, all in the name of the nation। और राष्ट्र के नाम पर जो पूर्व शहीद थे उनको सम्मानपूर्वक याद किया गया। They were memorized who have sacrificed themselves for the country. They have been honored and the new hymns, new prayers were composed। Centralized administrative system was put in place। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स, और सभी नागरिकों के लिए समान नियम बनाए गए विद इन इट्स टेरिटरी। राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक नए समान प्रशासनिक नियम बनाए गए। देयर वाज द सिमिलरिटी ऑफ लॉ for all the people living in the territory, and central administrative system was placed for ruling over the state। Intern customs, duties and dues were abolished। आंतरिक कस्टम, आयात निर्यात कर और जो बकाये थे
वे समाप्त कर दिए गए। एन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वे एंड मेजर्स was adopted और नाप और तौल के समान नियम बना दिए गए। There were equal rules and the systems were implemented at that time. Regional dialects were discouraged। जो आंचलिक भाषा थी उसे हतोत्साहित किया गया। एंड फ्रेंच as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation। और फ्रेंच राष्ट्र की सामान्य भाषा हो गई और इसे ही बोला और लिखा जाने लगा। आंचलिक भाषाओं को हतोत्साहित किया गया और फ्रेंच जो रीजनल लैंग्वेज वॉज डिस्करेज्ड। आंचलिक भाषा बोली का बहिष्कार हुआ और फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस में लिखी जाने वाली और बोले जाने वाली भाषा जो फ्रेंच थी उसे ही राष्ट्र की सामान्य भाषा निर्धारित कर दी गई। दैट्स ऑल।